Subscribe to our channel, press the bell icon and never miss an update from Latestly. पूरा करियर बना है ब्रो। यू नो बादशाह कहाँ से आया, कौन से गानों से आया, पूरा करियर वहां से स्टार्ट हुआ। एंड जैसे ही वो गाना इतना ऊपर पहुंचने लगा, मूवीज में जाने लगा, ऑल ऑफ अ सडन बादशाह वैनिश। कहाँ है भाई, एल्बम बहुत डिले हो रही है, पीपल आस्किंग फॉर मी, मेरा करियर खत्म हो जाएगा, कुछ और है, बादशाह का गाना है। मुझे नहीं पता कैसे नीचे फैंस को ये बातें पता होती हैं। भाई ऑब्वियसली पूरा गाना गाया मैंने, पूरा सैटरडे रैप पार्ट वाज टोटली बादशाह का। तो शुक्र है आवाज मेरी है भाई, शुक्र है आवाज मेरी है मूवी में भी। अदरवाइज मेरे ख्याल से मेरे साथ क्या होता, इफ दिस सैटरडे मेरी लाइफ से हटा दो, मैं कौन। टोल्ड मी कि सेम थिंग इज हैपनिंग विद मी, फील अबाउट मी, मेरे को नाम नहीं दिए जा रहे मेरे गानों में, हनी सिंह एंड ऑल ये वो। एक टाइम पे ना कैमरे से डर लगने लग गया। इंडिया में मेंटालिटी है, शादी के बाद हमेशा लड़की से पूछा था बच्चा कब हो रहा है, बच्चा कब हो रहा है। सेम वाज विद मी। तो कम बैक की जरूरत पता किसको होती है, जो गायब हो जाता है। बंदा परेशान होना, उसको और उंगल मत करो। एक लेवल हेल्दी कंपटीशन करो, वो उंगली तोड़ देगा किसी दिन भी, क्योंकि he has nothing to lose that time. First of all, welcome to Latestly. Thanks, good bhai, to thanks. see it's good to see your beaming face, your positive energy. I love the look of that studio, that backdrop behind you. So everything Thanks, bhai, is in thanks. sync. As opposed to the drab background that I have right behind me. But that's okay, as long as the conversations are colorful and meaningful. I don't Yeah, care. yeah. I hope you don't mind either. No, bro, no, not at all. So music is something that is so evident in the backdrop, in your personality, as indeed in your CV, in your portfolio. So what have you gathered in all these years? Of course, people know you for Kala Chashma, people know you for Saturday, and something new that you have come up with. And it is all about life, it's all about full of zindagi. Would you like to shed light on the same? Basically, this is not a just not a track. This is basically my story. Where was I for 6 years, past 6 years? You know, after Saturday, it was a great success. पहला गाना ही, and I saw दो stardom. मुझे पता भी नहीं था, selfies भी नहीं लेनी आती थी मुझे उस time पे. And you know, small kids coming to my house, बाहर gather हो जाना सबने कि this is Saturday वाला Saturday. I was a new Shani Maharaj for them. So and after Saturday, it came in a movie, Dharma production. Again a big hit, you know, featuring Alia Bhatt, Varun Dhawan. Then Kala Chashma happened, you know, but Kala Chashma is a big success for me. But now it became a big success for me, you know, after getting credits. Initially, it was a torture for me. Whenever I used to hear the track, किसी शादी में बज रहा है, कहीं पे बज रहा है, and if anybody is tagging me उस पे कि भाई ये तो अपना ही है ना, so that was a trigger to me. तो यस भाई, वो अप्स एंड डाउन थे, एंड आई हैव हर्ड मेनी टाइम्स कि हिंदी हैज गॉन, इंडस्ट्री में रहा नहीं, उसके पास कुछ है नहीं, एंड ऑल दोस ट्रोलिंग एंड ऑल, एंड आई टुक इट सीरियसली उस टाइम पे। यू नो 10 साल पहले यार, आई एम 90 बॉर्न, 22-23 साल का लौंडा यार, और उस टाइम पे ना लगने लग गई चीजें। सो धीरे धीरे आई वाज फाइटिंग विद दोस थिंग्स, वो ट्रोलिंग, कुछ लीगल इश्यूज एंड ऑल। तो वो जो चीजें, वक्त था ना भाई, उसके दौरान जो बातें थी, दैट आई एम अलाइव, मैं जिंदा हूँ, मैंने बहुत कुछ सुना भाई कि ही इज नो मोर, या नहीं, वो नहीं, ये वो। दे न्यू ना कि कभी आके उसने लाउडली बोला नहीं, कुछ करा नहीं, वो अपने में रहता है। सो या दिस इज अ ट्रैक, मैं जिंदा हूँ, फॉर दोज जिन्होंने सोचा कि आई एम नो मोर। एंड सेकेंडली, इट्स अ थेरेपी भाई। पता है these days ना 90% of youngsters, yeah, not youngsters only, 90% of people are suffering from some kind of trauma. कुछ dark उनके memory में है, अकेले बैठने का मन है, कुछ है, but they don't speak. Yeah. So they're not vocal. They're not vocal. Yeah, exactly. So this is for those. But come on, you have vocal. Sometimes your work needs to speak volumes, and your work did speak volumes. I mean, these two tracks are what? Universal. They're phenomenal. In the sense that wherever you go, no matter where in the world, what time the party is, if these two songs are not there, then it ain't party, you know, it is not party. So in that sense, you were very vocal, your work was speaking for yourself. And now Zinda, as you said, it's all about resurrection, not just resurrection, telling people that here I am, very much alive and kicking. How did this idea, the germ of an idea, come to your creative head? Basically, recently I was sitting with my company, Lucifer Music, and we all were together. And he was just listening to my story. यार इंदीप हुआ क्या? You know, एक भाई वाला touch आ जाता है. What happened, यार? He heard all my songs. I think I have more than 100 songs in my library right now. And I was working on them only. Then he said, यार, you have a story, Indeep. Why don't you tell others also, no?
तो वहां से वो आइडिया आया एकदम, मैं जिंदा हूँ, यू आर अलाइव ब्रो, अपना काम देख वहां पे। ये नहीं कि 6 साल यू आर इन डिप्रेशन, कुछ भी डार्क फेज में यू आर मेकिंग दोस्त ट्रैपी सॉन्ग्स या कुछ किसी का डिस बना रहा है या सैड सॉन्ग्स या कुछ भी। आई वाज मेकिंग माय कमर्शियल्स ओनली यार, काली काली गड्डी काले काले कारनामे एंड ऑल, यू नो, माइंड में वही था। Go on, देन go on. ही We are all ears. डिसाइड किया यार, आई डिसाइड किया कि एटलीस्ट गिव अप, एक ये वाला साइड भी दिखाना है इंदीप, नोबडी नोज कि हु इज इंदीप यार। उसके साथ भी 6 साल, आफ्टर ऑल इज अ ह्यूमन बीइंग, उसके साथ कुछ भी हुआ, कुछ जस्ट बी वोकल, नो। Yeah. तो वहां से वो आइडिया है, एंड सीरियसली आफ्टर यू नो मेकिंग दैट ट्रैक आई एम फीलिंग सो लाइट। मतलब आफ्टर स्पीकिंग दिस माय फैमिली इज वाचिंग ऑल दीस इंटरव्यूज एंड एवरीथिंग, मतलब दे वर सरप्राइज्ड कि यार इतना सब कुछ हमें, क्योंकि आई नेवर टोल्ड माय फैमिली कि क्या चल रहा है क्या नहीं, आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, आई एम वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट, आई एम मेकिंग समथिंग न्यू, आई एम गोइंग देयर, ये वो, बट दे डोंट नो ना, क्योंकि इनिशियली हर बच्चे को होता है कि पेरेंट्स को ना बोले। तो ये चीज ऐसी है भाई, बट आई थिंक कि दिस इज द बेस्ट थिंग व्हिच गोना हैपन आने वाली चीज में। बाकी उसके बाद सब कमर्शियल है, ऑल कमर्शियल, जिन दीपक शीले जानते हैं जिसके लिए, सब गाड़ियां बजेंगी, स्पीकर बजेंगे, बेस बजेगा, एंड ऑल न्यू म्यूजिक भाई, न्यू साउंड, बिल्कुल न्यू साउंड। तो Back ये to back कैसे आएगा। हुआ, इसका मिलाप कैसे हुआ, ये कैसे बाइफर्केशन होता है आपके हेड में, जब आपने कहा बाकी का जो होगा वो कमर्शियल होगा, ये मेरा है, ये मेरी खुद की कहानी है, ये मेरी असलियत है, ये मेरा जुनून है, ये मेरा पैशन। तो Yes, sir. कभी ऐसे जहन में नहीं आया कि इस जुनून को, इस पैशन को, मेरी स्टोरी को भी कमर्शियल करना चाहिए? वो बाइफर्केशन, वो डिवीजन आपके हेड में क्लियर कट कैसे हो? भाई पॉइंट इज व्हेनेवर वी राइट समथिंग और कंपोज समथिंग, नो, अगर मैं एक आज कमर्शियल गाना बना रहा हूँ तो मैं जो मैंने जिया, व्हाट आई हैव लिव्ड, राइट, उस टाइम पे क्या म्यूजिक मैंने सुना आज तक लाइफ में, क्या बातें, तो उस पॉइंट पे ना वो बातें जाती हैं। एंड दिस इज, मैंने इसमें भी ये ट्राई नहीं किया कि मैं नॉर्मल एक प्रॉपर पियानो में कुछ बातें बोल रहा हूँ कुछ, ये भी अगर आप सुनोगे इट्स अ हिप हॉप, मैंने प्रॉपर वैसे रैप नहीं किया है, दिस इज अ कमर्शियल ट्रैक ओनली भाई, तभी तो लोग सुनेंगे। मैंने हमेशा टारगेट अपने यूथ को किया है, इट्स नॉट कि वो ऊपर के बंदे सुने, यूथ भी सुने, वो ये ना समझे कि डिप्रेशन है, वो कहेंगे अरे मजा आ रहा, अभी मैं जिंदा हूँ, हर पॉइंट पे अभी मैं जिंदा हूँ, ये नहीं कर पा रहा, अरे मैं नहीं मरा, अभी मैं जिंदा हूँ। तो ये ऐसा नहीं, दिस नॉट कि एक नॉर्मल ट्रैक है, दिस इज ऑल्सो कमर्शियल ट्रैक, हिप हॉप म्यूजिक है प्रॉपर, सुन के मजा आएगा, बट डेफिनेटली कि आई कैन नॉट मेक इट वो वाली फील जो आंखें बंद करके मुझे खुद ना है कि मैं यूं चला रहा हूँ, मैं जिंदा हूँ, जो मेरे माइंड में आया, जो फ्लो एक बीट के साथ मुझे फील करी कि हाँ इस पे मैं जा सकता हूँ, फ्लो कर सकता हूँ, ये बातें फ्लो होती हैं एक अर्बन तरीके से, वो मैंने किया। इट्स नॉट कि भाई नॉर्मल एक मैंने करके सिर्फ बातें बोल के मैं लिख के निकालने वाला, इतने टाइम बाद आ रहा हूँ ब्रो, इट विल बी अ गुड थिंग फॉर द एनर्जी है, जिस टाइप की आपकी शख्सियत है, और जैसा आपने एक्सप्लेन भी किया कि for a long time you were not vocal, you completely kept it all bottled up, so to speak, but creatively you were absolutely unleashed, and it That's was right. such a sensation whatever your creation was, and of course Yeah. बहुत ही ज्यादा उसकी खुमारी चाहिए रहेगी, but going along the way, along the path, आपने friends बनाए और कुछ friends नहीं बनाए, ये अनबन की जो बात है, ये इसके पीछे की स्टोरी हम इसलिए जानना चाहते हैं कि क्या होता है, मतलब क्रिएटिव इंडस्ट्री में हम लोग सोचते हैं कि सिंगर्स जो है वो उनका सोल बहुत ज्यादा प्योर होता है, क्योंकि वो म्यूजिक से जुड़े हैं तो भगवान के बहुत करीब है, लेकिन जब ऐसी बात उभर कर आती है तो लगता है भाई उधर भी शातिर दिमाग है कुछ। तो इस पर क्या आपकी टिप्पणी है? भाई you know when Saturday happened to me, मेरी इतनी सी फैमिली से इतनी बड़ी हो गई, एंड उस पॉइंट पे क्या होता है, एवरीबडी वांट्स टू टॉक टू यू, वर्क विद यू, दे वांट की फीचरिंग मिल जाए, पाजी के साथ वो ना एक पाजी वर्ड जुड़ने लग जाता अपने आप ऑटोमेटिकली, पाजी काम करना है, पाजी ये फ्रॉम बॉलीवुड ऑल्सो, पाजी गाना चाहिए सैटरडे जैसा चाहिए, एंड यू नो जब वो देखते हैं कि कुछ हो रहा है दो बंदों के बीच में, एंड कौन यहाँ आ गया कौन ऊपर जा रहा है, एकदम से वो शटर होना शुरू होते हैं, गायब होने लग जाते हैं ऑल ऑफ अ सडन, एंड पीपल जो सबसे करीब थे, जिनको आप इग्नोर करते हो, टेकन फॉर ग्रांटेड, ये तो साथ रहेंगे, अभी देख ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ब्रो यूं करके गायब, तुम्हें ज्ञान देने वाले, वो टीचिंग यू, समझाने वाले, व्हेन यू इन अ बैड फेज, नो, एक्सेप्ट योर फैमिली एंड क्लोज फ्रेंड जो कि आपके आर्टिस्ट से पहले के थे, नॉट आफ्टर द सक्सेस, बिफोर द सक्सेस, जिनके सामने यू आर, जो मैं हूँ वही साथ रहता है। सो दिस इज अ बिग लेसन आई हैव लर्न, आज कहीं भी हूँ मैं, कहीं पे भी पहुंचूं तो आई नो मेरे अपने कौन है, रेस्ट जो भी है वो एक, it's like a weather, आया वो चेंज भी हो जाएगा। See, as an तो outsider, आम I do दो not जाने know, to be very honest with you,
as an outsider, I do not know who was with you and who was not with you, because it's a wide world out Initially, there, like and it was a when sensation. Saturday But happened, allow me to finish yeah, my question. So the yeah, two yeah, names that keep cropping in the statements that you're making, A is Bacha yeah, and second is Yo-Yo Honey Singh. And your yeah, opinion about their work, about their personalities yeah, as well, are as yeah. different as chalk is from cheese. 100%, 100%, 100%. Would you like to explain? Would you like to shed light on the same? Yeah, but 100%. See, I haven't worked with Honey Singh, right? But Honey Singh was my inspiration. You know, when I was producing something new sounds, just कुछ भी नया करना है, Honey Singh was my inspiration. You know, when Saturday happened, initially I went to Honey Singh for the featuring. यार, I like you, I like your work, I want कि आप feature करो इसमें. And उस टाइम उसकी management और बात करी, नहीं यार हम अपना गाना दे देंगे and all. मैंने कहा नहीं वो नहीं चाहिए. Then I met Badshah. And through common friend मेरे पास आया, and he was also working with Honey Baji that time. कोई गाने शूट होते, वो रिलीज नहीं हुआ था अभी गाना. हर जगह एक नई कहानी बनती है भाई. एंड आई वाज बीइंग टोल्ड कि मेरे गाने नहीं निकल रहे, आई एम रियली, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे साथ ये हुआ वो हुआ. एंड यू गेट अटैच टू अ पर्सन, नो, एक फेथ वैल्यू बन जाती है. एंड आई वाज सो ट्रांसपेरेंट, व्हाटएवर ही सेड, ये करना है डन. Back in the ये day, करना है Badshah डन. was not the Badshah. या ही वाज नॉट दी बादशाह, तो ही वाज जस्ट बादशाह टू मी, मतलब भाई मेरा जैसे बना हुआ था. एंड एक काम कर रहे हैं नो, एंड ही वाज, क्योंकि वो इंडस्ट्री से था एंड आई वाज न्यू, मुझे म्यूजिक लिरिक्स सब मुझे मेरे पास था कि वर्क कैसे करते इंडस्ट्री, रिलीज कैसे होता है यार, ये चीज मुझे चाहिए थी और एक फ्लेवर भी चाहिए था. जब ये सैटरडे बना भाई, and जब वो गाना पहुंचा, आई नो क्या क्या प्रमोशंस, क्या क्या ग्राउंड प्रमोशंस, क्या क्या मेहनत, कैसे स्टूडियोज जाना, वीडियो के लिए पैसे इकट्ठे करना. आई वाज 22, मैंने अपने घर से पैसे नहीं लिए थे भाई, उससे भी छोटा था मैं. अपने पैसे इकट्ठे करना आर्किटेक्ट का काम था. आई वाज वर्किंग एज प्रॉपर दिन रात की. मुझे पता है एक भी एलिवेशन पास हुआ मेरे इतने पैसे इकट्ठे, बिकॉज मुझे वीडियो बड़ी करनी है, हर चीज बड़ा करना है. एंड जब वो चीज हिट बनी भाई, ऑल ऑफ अ सडन वी वर वर्किंग ऑन माय एल्बम. उसके बाद यू नो, एक आर्टिस्ट ये नहीं होता है गाना फेंक के गायब, एक प्लानिंग होती है माइंड में. अगर इतने साल बाद मैं सोच के आया हूँ, आई एम स्पेंडिंग सो मच एक प्रोजेक्ट पे, कभी मैं हनी पाजी पास जा रहा हूँ, कहाँ, इट मींस आई हैव अ प्लान, राइट. And Yo-Yo Honey Singh was already a success. He was already a sensation that year. वो स्टार्ट हो चुका था, वो गाने आने शुरू हो चुके थे, इंटरनेशनल फीचर हो चुकी थी, एंड ही वाज अ स्टार. एंड देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय एल्बम. तो बादशाह के प्रॉपर डिसाइड हुआ कि एक एल्बम बनेगी प्रॉपर, क्योंकि फैंस आर एक्सपेक्टिंग फॉर मोर सॉन्ग्स. कुछ गाने मेरे पास रेडी हैं, कुछ तू दे गाने, मतलब एक सेटअप हुआ. एंड जैसे ही वो गाना इतना ऊपर पहुंचने लगा, मूवीज में जाने लगा, ऑल ऑफ अ सडन बादशाह वैनिश. एंड आई वाज सो न्यू, मुझे नहीं पता कि कहाँ क्या बात करनी है. वो जस्ट कॉन्टैक्टिंग हिम, कहाँ है भाई, एल्बम बहुत डिले हो रही है, पीपल आस्किंग फॉर मी, मेरा करियर खत्म हो जाएगा, आई हैव लेफ्ट एवरीथिंग फॉर दिस. क्योंकि गाना वहां पहुंच गया, आई नो दिस इज माय, जो मैं लिख रहा हूँ दिल्ली वाली बातें, इट्स गोइंग, आगे जा रही है, लेट्स डू इट, नो पीपल आर वेटिंग फॉर मी. एंड भाई करते 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 मैं सिर्फ उसके बाद सिर्फ टीवी पे देखना शुरू हो गया कि ऑल ऑफ अ सडन काला चश्मा आ गया. दैट सॉन्ग वाज रिलीज्ड, ऑलरेडी रिलीज भाई मेरी एल्बम में पहले. एंड उससे मूवी में गाना आ रहा है, नो क्रेडिट्स, नथिंग, पीपल आर मैसेजिंग मी. फिर एक गाना आया बर्बरी चेक, उसमें ट्रोलिंग शुरू हो गई, तू चोर है, बादशाह का गाना है. मुझे नहीं पता कैसे नीचे फैंस को ये बातें पता होती हैं. उस टाइम पे नहीं पता था ना कि ये दूसरी चीजें भी होती हैं, कुछ भी मैसेज करवाना है, कुछ भी. तो भाई यहाँ से वो एकदम जब टूटा ना, and I was all alone and I was just fighting for my rights. कि यार So originally the composition that they were saying, ये बादशाह का गाना आपका नहीं है, it was originally your composition. भाई ऑब्वियसली पूरा गाना गाया मैंने, पूरा सैटरडे, रैप पार्ट वाज टोटली बादशाह का, इट वाज टोटली बादशाह का. म्यूजिक पूरा बादशाह ने करवा के दिया. इनिशियली आई वाज इन्फॉर्म कि बादशाह वाज डूइंग द म्यूजिक, बट मुझे बाद में लेटरली पता लगा देयर वाज अ गाय, सचित, मेरे घर के थोड़े पास में ही रहता था, एंड ही हैज डन ऑल द म्यूजिक, सचित टक्कर. तो इनिशियली मुझे क्लियर ही नहीं था दो पार्ट में किसने म्यूजिक किया है. रैप का भी मुझे तो ये था कि भाई आई हैव डन द रैप, दिस इज अ ट्रैक, मैंने प्रॉपर तैयार कर दिया तेरा गाना. आई वाज नॉट इन्फॉर्म क्या चल रहा है क्या नहीं. तो शुक्र है आवाज मेरी है भाई, शुक्र है आवाज मेरी है मूवी में भी, अदरवाइज मेरे ख्याल से मेरे साथ क्या होता. इफ दिस सैटरडे मेरी लाइफ से हटा दो, मैं कौन, नोबडी ब्रो. इट्स जस्ट नॉट कि क्रेडिट जाना आगे पीछे, इट्स योर लाइफ ब्रो. आज मेरे दोनों क्रेडिट हटा दो अब. सैटरडे, यू वोंट बिलीव, बीच में सैटरडे में भी नाम नहीं आ रहा था मेरा, जो सर्च करो सैटरडे पुरानी वीडियो में नाम नहीं था, सैटरडे खत्म. तो मतलब इतनी चीजें मैंने वो देखी करी ना, बस सो. तो इसलिए जितने अपने हैं या तो खुद बन के रह जाओ. Did you then not make an effort to clear the air, to get the much needed clarification कि मैं इकट्ठा बैठकर man to man, heart to heart conversation करके भाई ये क्या हो रहा है? ऐसा एक पॉइंट नहीं था जहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट नहीं किया. इनफैक्ट
इतने बड़े सक्सेस के बाद एक दो बंदे निकले, उनकी शादी हो रही है, कुछ हो रहा है, वाज नॉट बीइंग इन्फॉर्म्ड। मैंने तब इनफैक्ट मैंने फीस तक दी थी आगे के काम के लिए कि म्यूजिक में पैसा लगता है, सब लगता है, एंड ही वाज गॉन। क्यों नहीं मैं कांटेक्ट करूंगा, मेरी एल्बम स्टेक पे, मेरा करियर स्टेक पे है। आई वाज सर्चिंग कहां ढूंढूं, कहां जाऊं, क्या करूं। तो जो आपसे मेरे कम्युनिकेशन पूरा बंद कर चुके थे क्या? हो खत्म ब्रो, टिल डेट आज तक मेरी बात ही मतलब नहीं, नो from that व्हाट्सएप, day नो कॉल, आज नो तक मैसेजेस, नथिंग ऑन द मेल, नथिंग। nothing bro, nothing, not even a single message। या ये भी नहीं कि हिंदी तेरे को मिसकंसेप्शन हो रही है, तेरे को ये हो गया, मेरा ये हो गया, ऐसा Correct. हुआ कुछ, nothing bro। Correct. ये एक नॉर्मल गाना नहीं था ब्रो, सैटरडे वाज अ नॉर्मल थिंग। या ये भी नहीं था कि ही वाज दी बादशाह, कि उसमें से एक आधा गाना आ गया एंड ही शाउटिंग। पूरा करियर बना है ब्रो, यू नो बादशाह कहां से आया, कौन से गानों से आया, पूरा करियर वहां से स्टार्ट हुआ। आई एम नॉट सेइंग आगे के गाने उसके खराब बेकार, आई लव लिसनिंग टू हिज सॉन्ग, उसके काम, बट पॉइंट इज I see that shock on your face. I see that shock on your face. I also see that sadness on your face. But going forward, what have you decided? I mean, no communication from his side whatsoever. आगे जाकर, are you trying to resolve it, or are you trying to take some other approach to get this resolved? भाई कोई अप्रोच नहीं, आई डोंट वांट कि मैं इस टाइम पे ना किसी भी चीज पे, इफ यू वांट टू क्लैरिफाई, भाई मैं तो आज तक बोलता हूं मुझे कोई इशू नहीं, बात तो करो क्या हुआ था, आई एम देयर, मुझे बताओ तो सही हुई क्या थी। ऑल ऑफ सडन तुम गायब, नाम आ रहे हैं, मेरे गानों की चीजें यूज हो रही हैं, प्लीज टॉक टू मी, यू नो मेरे पे क्या फील हो रहा होगा। एंड इनिशियली you told me कि same thing is happening with me, feel about me, मेरे को नाम नहीं दिए जा रहे मेरे गानों में, by हनी सिंह and all, ये वो, and वो चीज हो रही थी, I was feeling the same thing कि यार ये तो स्टोरी मैंने सुनी है, and I'm living that story now। तो मुझे कोई इशू नहीं, मुझे भाई पता डर किसको होता है, जिसके यहाँ पे चोर होता है। Absolutely. I'm okay, मेरे से बात करो, मैं क्यों भागूंगा आगे पीछे, कहीं भागूंगा। एंड इनिशियली जब आया भी काला चश्मा, दूसरी चीजें भी आया, आई नेवर केम आउट कि ये क्या हो गया, लोगों दिखाओ, देखो मेरा नीचे नाम है, एक भी इंस्टाग्राम में देख लो जहाँ मैं पॉइंट करो मेरा नाम है, दिस इज माय ट्रैक, ये वो नहीं भाई, आई वाज फाइटिंग फॉर अदर थिंग्स साथ साथ में, बहुत इट वाज अ बैड। You understand this since you are in the same domain, two of you. Yeah. इतने ज्यादा कॉमन फ्रेंड्स रहेंगे, टैलेंट मैनेजमेंट कंपनीज रहेंगी, फिल्म कंपनी, प्रोडक्शन हाउसेस के लोग रहेंगे, शायद पीआर के लोग भी रहेंगे, और आपके कुछ पर्सनल फ्रेंड्स भी। Did you not use any of that channel to reach out to him or get some information, some communication? We did भाई। इनफैक्ट जब काला चश्मा का हुआ था, एंड थैंक टू जी म्यूजिक कंपनी जिन्होंने नीचे क्रेडिट भी मेरे को दिए, सब कुछ किया बाद में, व्हेन आई टॉक टू अनुराग बेदी, सबने किया। मतलब वो ही होता था, दिस इज अ बिजनेस भाई, एट द एंड ना एक बिजनेस है, मतलब कोई भी किसी के फट्टे में ना पड़ता नहीं। सीरियसली आई एम टेलिंग द ट्रूथ। आज कोई भी मुझे भी कहेगा यार उनके क्लेश चल रहे हैं, कुछ कर रहे, बंदा कहेगा यार सॉल्व इट योरसेल्फ ना, मैं क्यों करूं, वो उतना ऊपर पहुंच, मतलब मेंटालिटी बन चुकी है लोगों कि मैं क्यों करूं, ठीक है ना, जान दे, अपनी सेटिंग उधर ठीक है, ये इधर ठीक है, तो वो पॉइंटलेस है भाई, दिस इज पॉइंटलेस। तभी मैंने कहा कि एट द एंड जो स्टार से पहले आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली, दे आर द क्लोजेस्ट, आगे सब एक सर्कल है, कौन कहाँ है, किसके साथ है, हवा है, वो कभी भी कहीं होगी, कभी इधर होगी। क्या फ्रेंडशिप फिर से हो सकती है? Because you guys work together on a common endeavor. Perhaps you must have had discussions for very long nights as well. Those long chats, those long nights spent together working on a particular album. क्या आप अब चाहते हैं, मतलब क्या possibility है कि, because this is the industry where friends are temporary, so are the foes, so are the enemy. तो यहाँ पर आप क्या गुंजाइश है अभी? आप क्या चाहते हैं कि एक टेबल पर आकर बात हो, कुछ आपको क्रेडिट मिले ना मिले, फिर से काम हो ना हो, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? इस पॉइंट पे जो क्रेडिट थे वो आ चुके हैं, इस पॉइंट पे आगे कौन से क्रेडिट, क्या क्रेडिट, कुछ भी नहीं, अब नया काम आएगा ब्रो। क्योंकि पता है क्या होता है, जितना फाइट करते हो ना आप अपने आप को परेशान करते हो। 10 चीजों में आप अपनी चीजें छोड़ चुका था भाई मैं इन चीजों के चक्कर में, तो आई डोंट वांट टू फाइट अब किसी भी बात पे। इफ ही वांट्स टू टॉक, मेरे लिए बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, बट फॉर मी पता है, यू वोंट बिलीव कि एक टाइम पे देखता भी हो ना तो एकदम से क्या होता है कि पुरानी चीजें समझ रहे हो आप, यू स्टार्ट रिकॉलिंग ऑल दोस बैड मेमोरीज, यू नो कि ये अबे यार ये नहीं चीजें, मतलब इतना, अब यू वोंट बिलीव यार 22 साल से आई वाज वर्किंग, मैं उससे पहले से काम करके मैंने पैसे बना के चीजें करी, इंडिपेंडेंट था मैं, एंड इतना कॉन्फिडेंट लड़का कि मतलब एक टाइम पे ना कैमरे से डर लगने लग गया, बाहर आने से डर लगने लग गया,
आई वाज सो स्कैर्ड ऑफ, आई डोंट नो किस बातों से कि मेरे से क्वेश्चन ना कोई पूछ ले, मैंने किए ही नहीं, मैं हुई नहीं हिंदी बख्शी नहीं हूँ यार मेरे से क्वेश्चन, क्योंकि इट्स जस्ट लाइक ये होता है ना जो इंडिया में मेंटालिटी है, शादी के बाद हमेशा लड़की से पूछा था बच्चा कब हो रहा है, बच्चा कब हो रहा है, सेम वाज विद मी, कब आ रहा है, क्या हो रहा है, कब आ रहा है, क्या हो रहा है, वो इतना वो होता था। तो आई थिंक कि वो अपने पाथ में इज गुड, आई एम अपने पाथ में, मैं अपना बढ़िया हूँ, म्यूजिक दोनों में एक हेल्दी कंपटीशन होता है ना, वो अपना कर रहा है। आई डोंट हैव एनी कंपटीशन यार इस टाइम ना, मेरे को मलवा Can I ask you one honest question, because you're opening your heart and allowing us to, delve into the deeper side of this equation that has gone, sour, so to speak. Since you mentioned that your whole energy and focus will be now on your work and what you're going to do from this point onward, why did you then choose to tell this story, to share this story with the media and say this at this point in time? What was the motive? What was the intention behind? Because darling, this was the only thing जिसके चक्कर में I was not coming out हर चीज में, क्योंकि एक फेस सबने सुन लिया, नीचे ट्रोलिंग देख ली, हिंदी चोर देख लिया, क्रेड्स में नाम आने के बाद भी इसने कुछ सेटिंग कर दी। डू यू थिंक मैं सेटिंग कर सकता हूँ इतने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस से यार? ये कर दिया। तो अगर मैं वो बाहर नहीं आऊंगा ना ब्रो, मैं कभी भी कैमरे पे नहीं आ पाऊंगा। जितने आफ्टर जब मैं मुझसे शादी करो में एक शो था कलर्स का, जब मैं वहां पे आया, आई वाज सो स्कैर्ड कि कैमरा है, कुछ बोल ना दूं, कुछ कर ना दूं, मेरे पे लीगल एक्शंस ना हो जाए, ये ना, आई वाज सो स्कैर्ड, क्योंकि कुछ भी हो सकता था, पटाखे फटते हैं भाई इस लाइन में। एंड जब मुझे पता लगा ना कि नहीं यार ये रियल बंदे हैं, उन्होंने मेरी थोड़ी सी साइड सुनी वहां पे, थोड़ी सी कि मैंने बोली, क्योंकि 100% वो भी नहीं दिखाएंगे, उन पे भी कट चलता है शो पे, 24 आवर्स यू आर इन अ कैमरा, नो, हर बंदे को स्टोरी जाननी थी मुझसे उस घर पे भी। तो पीपल आस्किंग तो क्या हुआ था, तेरा ये सुना था, तेरा वो सुना था भाई, इट वाज जस्ट 20 सेकंड्स की कि यार ये मेरे साथ हुआ। एंड मुझे ना पता लगा कि रियल वो फेक ट्रोलिंग कौन थी और रियल फैन कौन है। दिल सब में है मेरे भाई, मेरे ना माइंड से ही हट गया था कि दिल वाली बात भी होगी। मुझे लगता है ये पागल लोग होते हैं, सब होता है भाई, वो नकली है, वो कंप्यूटर है, दिल सब में है। एंड जो मुझे वो प्यार मिला कि भाई आओ, अगर वो चीज ना होती मैं आज भी बाहर ना आता भाई, मैं ये लाइन ही छोड़ चुका होता। पर वो जो मुझे दिखा ना, उसके बाद एक छोटा सा फैन भी आके, हमें वो फैन काला चश्मा जान किस बच्चे ने बोला, क्राइड कि यार शिट मैन ये देख। तो वो जो एक अर्ज जो है ना भाई, इसलिए मैंने बोला, मैंने अभी आपको एक भी चीज नहीं बोली कि चौथा गाना, पांचवा गाना, आई एम जस्ट सेइंग जो से मेरी ऑलरेडी गाने आए हैं जिसपे नाम आ चुका है, दैट्स इट, नो एलिगेशंस, नथिंग। जो मेरे साथ आया, लेट आया, मैं 6 साल कहाँ था उसका, दैट्स इट ब्रो। अब मुझे करना हो कुछ भी, अगर आपके माइंड में आ कि व्हाई ही इज टेकिंग बादशाह का नेम है कुछ, इट्स नॉट अबाउट बादशाह का नेम या हनी पाजी का नेम, इट्स की मैं कहाँ था, मेरा नाम कैसे आया, it's your story and what it's my happened story, my what story. happened to you. Also the hard thing is that the positive thing about the whole conversation that you're making is also that you are so happy for Yo-Yo Honey Singh, the dark phase that he went through and he bounced back. How would you see that? Because you have gone into that dark space and you have made that much needed bounce back. Here's someone who was considered to be an icon in the music world. He went through a terrible phase, trying hard to get back. If not there, he's reaching there, trying real hard. How do you see the whole transition in the man? How do you see his dark phase? क्या उसके बारे में बोलेंगे आप? Yeah, definitely. I think जब हनी, I saw his face and जो उसका शरीर बना था, I could have connected. मतलब उस टाइम पे मैंने कनेक्ट किया कि क्या फेस चल रहा है, क्योंकि I think मेरा यहाँ स्टार्टअप से मैं यहाँ आया, लीगल चीजें लड़ी करी मैंने, he was there. अगर मेरा 30% है तो उसका 100% है ब्रो। आज अगर मैं 30% में इतना परेशान दिख रहा हूँ, उसका 100% था ब्रो। उस करियर से गायब होना, मेरे पे अगर 100 बंदे क्वेश्चन कर रहे थे, उस पे 1000 थे। मेरे यहाँ पे 10 चीजें की अलग अलग चीजें हो रही थी, टेढ़ी मेढ़ी, उस पे 1000 हो रही थी। तो वो चीज देख के ना ब्रो, स्टार्ट इनिशियली मैं सच बताऊं, उल्टा मैं भी ब्रेक डाउन हो गया था कि यार इफ हनी कैन नॉट, मैं कैसे करूंगा। तो ये ना चेन है भाई, यू फॉलो समवन, आपके नीचे आपके फैंस आपको फॉलो करते हैं, उनके भी छोटे छोटे और उनको फैन बच्चे फॉलो करते हैं। तो ना वहाँ ब्रेक हुआ। एंड उस स्टेज पे आके कोई बंदा और मेंटली टॉर्चर कर रहा है, तेरा कमबैक नहीं होगा, तू ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, उस पॉइंट पे ना भाई एक एक ट्रिगर भी एक ऐसा होता है कि बंदा बाथरूम जाके बंद कर लेता कि नहीं बात मत कर। एंड पूरे इंस्टाग्राम पे अगर आप खोलो एक ही चीज, हाँ कमबैक नहीं हो रहा, हाँ कमबैक नहीं हो रहा, सोचो कैसा टॉर्चर होगा। एंड सबसे ज्यादा मैं खुश कब था, जब कूले आया। एंड व्हेन ही स्टार्टेड लूजिंग वेट, गाने आ रहे हैं बैक टू बैक, धीरे धीरे ही इज कमिंग अप, एंड धीरे धीरे ये ना टेंशन हटती दिखने लगी फेस पे।
आई फॉलो, मैं उसकी एक एक पिक्चर देखता हूँ कि वो कैसे ओवरकम कर रहे हैं चीजों से। एंड आई थिंक कि हेड्स ऑफ ब्रो, वो जिस किस्म से वो कूले कूले 90 की एनर्जी, स्टिल ही इज ट्राइंग न्यू। उसको नहीं, ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ रैट रेस कि आज ये चल रहा है तो मैं भी डिस वाले ट्रैक बनाऊंगा, आज रेगेटन चल रहा है तो मैं भी रेगेटन बनाऊंगा, आज ड्रिल बीट चल रही है तो मैं भी ड्रिल करूंगा। कूले कूले 90s की वाइब ब्रो। वो कमबैक किसका करवा दिया उन्होंने यार। तो वो कमबैक की जरूरत पता किसको होती है, जो गायब हो जाता है। मेरी आज तक मेरे ख्याल से स्क्रीन से हनी सिंह गायब नहीं हुआ, किसी वेडिंग से गायब नहीं हुआ, किसी गाड़ी में बजते से गायब नहीं हुआ। बट ये था कि डेफिनेटली एक हमेशा, नॉट टू एनीवन, पर जितने भी सुन रहे हैं, कोई बंदा परेशान हो ना, उसको और उंगल मत करो। एक लेवल हेल्दी कंपटीशन करो, वो उंगली तोड़ देगा किसी दिन भी, क्योंकि he has nothing to lose that time। उस टाइम पे he has nothing to lose, he'll work इतना हार्ड ना किसी भी चीज के लिए, आप बीट नहीं कर सकते उसको यार। I'm really I'm glad really that happy for this। I'm really glad that you found inspiration, so to speak, a success story, so to speak, from your own industry, someone who's a popular name, the way he bounced back, कितनी एनर्जी होगी आपको मैं समझ सकता हूँ। बट हमें ये बताए, for someone who's seen this and who's completely immersed in this work and creativity at this level, at the film level, this kind of achievement, how do you see both these figures, Badshah as well as Yo-Yo Honey Singh, and their creative mind? Of course, there could be positives and the negatives as well. So what are the positives that they should be working on and fine tune them, and what are the negatives that they can work on as well and get rid of them, try to eliminate them as much as possible? See, for Honey, the best thing is he's not a part of any rat race. The new sound, new music, and जिस मर्जी शेप में था वो वर्कआउट देखा भाई ना, उसकी शेप देखो काला शाह, एंड द फैशन ही इज ब्रिंगिंग अपना, नॉट कॉपिंग। वो ब्रांड पहनना शुरू कर दूंगा, अब तो ब्रांड चल रहा है, अपना ही स्वैग ब्रो। So this is the best part of Honey Singh, especially his music, especially his writing, bro. It's a poem. वो इतना बढ़िया चीज लगती है ना कानों को, ना ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ना ज्यादा इजी, बट इट्स एक स्टोरी है जो सुन के आप इनिशियली कई बार हनी का क्या होता था कि मैंने वो प्ले ना गाना समझ नहीं आता था मुझे, वो सुन के ना मन करता था सुनो यार, दोबारा सुनो, प्लेलिस्ट में आएगा। एंड फॉर बादशाह आई थिंक जितने गाने हैं उसके बहुत अच्छे, कई गाने मैंने सुने भी, एंड ही प्ले सेफ ब्रो, वो काफी सेफ प्ले करता है। आई नो ये मेलोडी चल रही है तो ये मेलोडी ये बीट चल रही है तो इसको इन रखो, तो ही इज प्लेइंग सेफ, व्हिच इज गुड भाई। उसके लिए आई थिंक वो इट्स अ बिजनेस आफ्टर ऑल, एक बिजनेस है, अपना शौक भी है। क्योंकि रियल बादशाह मैं कहाँ देखता हूँ उसके 2M सेशंस पे, जो उसके 2M सेशन उसके चैनल पे आते हैं, आई हैव हर्ड, मैंने वो भी सुने हैं। उस टाइम पे बंदा हर चीज सुनता है कि इसके माइंड में क्या है, इसके माइंड में क्या है, क्या चल रहा है क्या नहीं। बट हनी का वो कुछ नहीं है, हनी का जो सामने है वो दुनिया के लिए, ही इज नॉट प्लेइंग विद माइंड कि यार अभी नहीं, अभी मुझे मूवी के गाने देने चाहिए, लेट्स अप्रोच यहाँ पे प्रोडक्शन हाउसेस की मुझे मूवी में डालना है गाना। उसको पता है मैं यहाँ हूँ, जिसको मुझसे लेना आ जाओ। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। हाउ डू यू सी योर जर्नी अहेड? जिंदा हूँ मैं तो ये तो है ही, और ये तो मतलब जहन से आए, तो आपकी स्टोरी है, आपके साथ क्या हुआ उसकी कहानी बाकायदा आप बयां कर रहे हो। लेकिन जब आप बोल रहे हो मैं कमर्शियली भी ज्यादा सक्सेसफुल होने के लिए कुछ अलग उस पैंडोरा बॉक्स से निकालूंगा, तो उसमें क्या रहेगा, उससे क्या मैजिक निकलेगा बाहर? भाई मैजिक ये निकलेगा, जो भी साउंड अभी आप, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी आर्टिस्ट जितने भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, दे ऑल आर यूजिंग इंटरनेशनल प्रोड्यूसर्स फॉर दोस इंटरनेशनल साउंड्स। एंड आई गारंटी ब्रो, जो ये साउंड आने वाली है जितने कमर्शियल गानों पे, वेदर दीज आर ड्रिल, हिप हॉप, कमर्शियल, कुछ भी, उस साउंड सुन के मजा आने वाला है कि क्या साउंड लेकर आ रहा है। तो ये नहीं कि वो पुराना डुबका सिंगल लाइन मारी उसी हुक पे चलाया, नहीं ब्रो। एक रियल म्यूजिक, नियर रियल साइड दिखेगी, कमर्शियल साइड। आई एम रियली एक्साइटेड ब्रो कि वो जो है ना भंडारा खुले, बैक टू बैक दिसंबर से फेंकना शुरू करो, एंड इट विल बी अ फन ब्रो, इट विल बी अ फन, इंटरनेशनल फन, टेस्टी इंटरनेशनल फन। We are looking forward to this international fun. It's really nice to see that broad smile on your face. It's really nice to see that positive energy. हाँ, कुछ खामियां थी, कुछ कंप्लेंट्स है आपकी, लेकिन आप वो बिटर होकर नहीं बता रहे, आप अपनी स्टोरी बता रहे, जो कि बहुत ही ज्यादा क्या सराहनीय है। Thank you so much. We are looking forward to this new creation, and we are looking forward to what you're going to create in the commercial space to take it to the international stage. All the best to you and for your career endeavors.